শৈলসহ দার্জিলিং, সেই দার্জিলিং উৎসব মুখর, কারণ চলছে রাই উৎসব। রাই জনজাতির সেই উৎসব, আর সেই উৎসবের দিন দার্জিলিংয়ে হাজির বাংলার কণ্ঠস্বর রিপাবলিক বাংলা। এর একবার গোর্খাল্যান্ডের দাবি উঠে আসছে দার্জিলিং থেকে। কি বলছেন পাহাড়ের আম জনতা তা জানতেই আমরা পৌঁছে গিয়েছি দার্জিলিং ম্যালে, এবং তারা কি চাইছেন আমরা জেনে নেব পাহাড়ের মানুষের থেকে সরাসরি। এই মুহূর্তে আমার আজকে অতিথি যারা রয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেস থেকে আমার সঙ্গে রয়েছেন দেবেন্দ্র গটানি, আমার সঙ্গে জিএনএলএফ থেকে রয়েছেন ওয়াই লামা, এবং আমার সঙ্গে হামরো পার্টি থেকে আছেন, আমার সঙ্গে রয়েছেন দীপু থাপা। এবং আমি তাদের প্রত্যেকের মত জানবো, পাহাড়ের মানুষের মত জানবো, কি বলছে পাহাড়ের মানুষ তা জানবো সরাসরি পাহাড়ের মানুষের থেকে। তার আগে একবার চলে যাবো, আমি যারা রয়েছেন তাদের কাছে একবার যাব। আমি জিএনএলএফ এর ওয়াই লামার কাছে আগে যেতে চাই। অমিত শাহ এসেছিলেন শিলিগুড়ি, তিনি বলছেন গোর্খাদের স্থায়ী সমাধান দিতে পারে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি। বিশ্বাস করেন? हमें भारत की केंद्र सरकार के ऊपर विश्वास है, और अमित शाह के जो वचन है, वो जिन्होंने जो सपने उन्होंने दिखाए उस पर भी हमें विश्वास है, और हमें लगता है कि बहुत जल्द संविधान के तहत हमें न्याय मिलेगा। জিএনএলএফ বলছে স্থায়ী সমাধান দিতে পারবে কেন্দ্রীয় সরকার, বিশ্বাস রাখেন তারা সংসদের ওপর, বিজেপির ওপর। আমি চলে যাচ্ছি তৃণমূলের কাছে, দেবেন্দ্র গটানি আমার সঙ্গে রয়েছেন। কি বলবেন, বিশ্বাস রাখেন তৃণমূল থেকে, মনে করেন বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকার সমাধান দিতে পারে গোর্খাদের? केंद्र सरकार और बीजेपी के लिए गोरखा सिर्फ एक वोट बैंक है। 2014 से पहले जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो उन्होंने कहा था कि गोरखा का सपना मेरा सपना कहा था, है ना। उसके बाद कहा था कि 11 जात गोष्ठी है, वो आर फाइटिंग फॉर द ट्राइबल स्टेटस, उनको देने का बात किया था। स्टेट गवर्नमेंट ममता बनर्जी का सरकार ने विधानसभा से पास करके स्टेट के पास भेज दिया है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउ कैन वी बिलीव? Gorkhaland is not agenda of Trinamool Congress. That is two different thing. Trinamool Congress and Gorkhaland, that is two different thing. हम लोग चाहते हैं कि स्टेट के अंदर, विद इन द प्रीव्यू ऑफ स्टेट, द तृणमूल कांग्रेस वांट टोटल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट। हमारे पार्टी के संविधान में गोरखालैंड लिखा हुआ है। पार्टी का फर्स्ट पॉइंट ही गोरखालैंड है, और गोरखालैंड सिर्फ हमरो पार्टी का नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उन सब के लिए है गोरखालैंड। गोरखालैंड मतलब सेपरेट स्टेट, और अब इसको असंवैधानिक भी नहीं बोल सकते, क्योंकि देश संविधान पे चलता है, और संविधान में आर्टिकल 3 है, उसके तहत हम सेपरेट स्टेट के लिए भी लड़ सकते हैं। अब बात आई यहाँ पे बीजेपी और टीएमसी का। अब बीजेपी और टीएमसी के चक्कर में ना हमारे लोग बहुत पिस गए हैं। पिछले 15 साल 20 साल का इतिहास है, कोई भी चैनल, कोई भी डेटा पॉइंट देख लीजिए, दार्जिलिंग एकदम पीछे छूट गया है। কেউ বলছেন তারাই গোর্খাল্যান্ড দিতে পারেন, কেউ বলছেন যে কোনো ভাবে গোর্খাল্যান্ড রুখে দেখাবো, আর কেউ বলছেন বিজেপি তৃণমূলের কাঠপুতলি হয়ে নয়, গোর্খাল্যান্ড আদায় করতেই হামরো পার্টির জন্ম। রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা রয়েছেন, আমি জেনে নেব আম জনতা কি বলছে। গোর্খাল্যান্ড চান? जी, गोरखालैंड तो हम लोग का मन मस्तिष्क में है, और संसार में जितने भी बैठे हुए हैं, जितने भी हम लोग का गोरखे जो समुदाय है, गोरखे हम लोग का भाई लोग है, सब लोग गोरखालैंड चाहते हैं सर। गोरखालैंड क्यों चाहते हैं? प्रॉब्लम क्या है बंगाल में रहने के लिए? क्योंकि गोरखालैंड क्यों चाहते हैं, ये एक आइडेंटिटी भी है, और ये पंजाबियों का पंजाब है और बंगालियों का बंगाल है, तो गोरखाओं का क्या है? कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग दूसरी जगह जाते हैं तो पूछेगा किधर से आ रहे हो, हम लोग बोलेगा हम लोग नेपाली है। बंगाल से आ रहे हैं तो वो लोग पूछेगा बंगाली हो। तो इसलिए भी हम लोग अपना आइडेंटिटी के लिए भी गोरखालैंड चाहते हैं। গোর্খাল্যান্ডের দাবি আরো একবার উঠছে এই পাহাড় থেকে। পাহাড়ের মানুষ গোর্খাল্যান্ড চাইছেন, পর্যটকরা কি চাইছেন? যারা পাহাড়ে আসেন, পাহাড়ে সব থেকে বেশি বর্ণময় যারা করেন, সেই পর্যটকরা কি বলছেন আমি সরাসরি চলে যাব পর্যটকদের কাছে। আপনি পর্যটক, ঘুরতে এসছেন, দার্জিলিংকে বারবার উঠছে যে পৃথক গোর্খাল্যান্ড করার দাবি। একজন বাঙালি হিসেবে, কলকাতার মানুষ হিসেবে কতটা খারাপ লাগে? না, ওটা ঠিক নয় আমার মনে হয়। যেহেতু আমরা বাংলার মধ্যে আছি, তাই আমাদের পশ্চিমবাংলায় হওয়া উচিত, পশ্চিমবাংলায় থাকা উচিত, গোর্খাল্যান্ড না করাই উচিত। বিজেপি বারবার বলছে যে তারা গোর্খাল্যান্ড চায়। 2009 থেকে এখন আমরা দেখছি 2022 চলছে, 2 বছর পর আবার লোকসভা নির্বাচন।
তাহলে গোর্খাল্যান্ড নিয়ে যদি বিজেপি এতটাই চায় তাহলে তারা কাজে করে দেখাচ্ছেন না কেন, কিসের ভয়? देखिए गोरखालैंड जो बीजेपी के साथ पहले हम लोग तो नहीं थे, 2019 से हम लोग साथ में है तो कुछ ना कुछ होगा। हम जितने हो सकते हम कर रहे हैं। কোথা থেকে আসছেন? কলকাতা কলকাতা থেকে ঘুরতে এসেছেন। অনেকবারই এসেছি। দার্জিলিং এর কি ছবি দেখছেন? শান্ত পরিবেশ, হ্যাঁ শান্ত বসন্ত। মাঝে পাহাড় উত্তপ্ত হয়েছিল, এখন পাহাড় শান্ত, ভালো লাগছে? দুটো কথা বলি, আমি নিজে ট্রাভেল এজেন্ট, বহুবার দার্জিলিং আসতে হয়েছে, আসি বছরে 7-8 বার করে আমি আসতেই হয়। আর এই জায়গাটা ছিলামও। কিছু জিনিস তৈরি করা হয়, এই তৈরিটা কিন্তু বেশি দিন চলে না। এই যে পাহাড় আপনি দেখছেন, আমরা বাঙালি, বাংলা এটা বাংলার জায়গা, বাঙালিরা থাকবেন। পাহাড় তৈরির পেছনে পাহাড়ি মানুষদের অনেক বড় জায়গা আছে। তাদেরকে তাড়িয়ে কেউ দিতে পারবে না, তারা তো চাইছেও না। কিন্তু বাংলায় বসে বাঙালির অধিকার, বাঙালির জায়গা বজায় রাখাটা সবার আগে বাঙালির কাজ। গোর্খাল্যান্ডের দাবি নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে, কেউ গোর্খাল্যান্ড দিতে চাইছেন, কেউ বা বলছেন গোর্খাল্যান্ড হতে দেব না। রাজনীতিকরা রাজনীতির কথা বলবেন, তবে পর্যটকরা যারা একটু ছুটি পেলেই তারা চলে আসেন দার্জিলিং, তারা কি বলছেন? তারা কি গোর্খাল্যান্ডকে সমর্থন করেন? জেনে নেব। কোথা থেকে আসছেন? আমি খড়গপুর থেকে এসেছি। বারবার পাহাড়ে দাবি উঠছে গোর্খাল্যান্ডের, কারণ গোর্খারা মনে করছেন তারা বাঙালি নন, তারা বঞ্চিত, তারা গোর্খাল্যান্ড চান। আদৌ সমর্থন করেন? না, এই বিষয়ে তারা তো আমরা আসছি, দেখুন তারাও নিশ্চয়ই, তারা বাঙালিও তো আছে, বাঙালি গোর্খা তো একসাথে। তারা যে মনের ভাবনাটা, এটা মনে হয় একটু ডিফারেন্ট, এটা একটু চেঞ্জ করলে মনে হয় ভালো হয়। তো সবাই আমরা একসাথে আছি এবং একসাথে এনজয় করছি, আসছি, এটাই ভালো না? नहीं, ये बात तो ऐसा है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव बात है ना, ये तो भावना का बात नहीं है। इट्स अ पॉलिटिकल स्टंट है। ये क्या है कि गोरखालैंड का जो डिमांड है वो आपके या हमारे कहने से देना या नहीं देना नहीं होगा। इसके लिए विल पावर चाहिए। तो गोरखालैंड के लिए सबसे पहला बात क्या है कि बीजेपी का सपोर्ट किया हम लोग 2014 से लेकर अब तक, है ना। 3 बार थर्ड टर्म एमपी चल रहा है, एमएलए हम लोगों ने जीता के दिया। तो व्हाट गोरखा लोगों ने जीता के दिया, गोरखा आप तो तृणमूल से हो। नहीं, मैं तो पहले तृणमूल में तो नहीं था ना, मैं तो आज तो तृणमूल नहीं हुआ हूँ। आई वॉज इन जीएनएलएफ। वाई यू जॉइन तृणमूल? तृणमूले क्यों जॉइन করলেন? क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी आई वॉश कर रहा है, पहाड़ का जनता का आई वॉश कर रहा है। রাজ্য সরকার রেশন দিচ্ছে, জনজাতির উন্নয়নের জন্য বোর্ড গঠন করেছে, উন্নতি হচ্ছে? नहीं, अभी तक कुछ उन्नति हुआ ही नहीं है। ममता बनर्जी दीदी ने वोट दे दिया, वोट में करप्शन आ गया। जीटीए दे दिया, जीटीए में भी करप्शन आ गया। अब हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की तरफ जाना चाहिए, जो बाकी के विदेश लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे फ्री का फंड दे के लोगों को डिपेंडेंट बना रहे हैं। जैसे कि किसी एक ड्रग एडिक्ट को ड्रग दे के आप भुला के कर रहे हो, उसको काम कुछ करवा नहीं रहे हो। अगर आप बंगाल का जीडीपी देखेंगे ममता दीदी के आने के बाद और उससे पहले भी जीडीपी तो बहुत काफ़ी टाइम से ही डाउन है, अभी तक पॉजिटिव आया ही नहीं है। রাজ্যের জিডিপি এত কম কেন? बिकॉज सीपीएम 34 इयर्स था, है ना। तो सीपीएम ने बंगाल को कंगाल करके छोड़ा है। तो वी आर जस्ट हैविंग 11 इयर्स, है ना, 10 इयर्स कंप्लीट, 11 इयर्स चल रहा है। स्लो एंड स्टडी ममता दीदी कोशिश कर रहा है। पहले का जितना भी ये ज्योति बाबू का सरकार अथवा बुद्धदेव का सरकार जितना भी डेफिसिट का बजट किया है वो थोड़ी देर थोड़ा थोड़ा करके रिकवर हो रहा है। अभी रिकवर होगा भी। बीच में देखिए, अब ये कोरोना का काल था, उस वक्त कोई टैक्स ही नहीं उठा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ कह रहे फ्रूटफुल बात ही नहीं हुआ। तो उसका कारण भी जीडीपी अभी थोड़ा डाउन है। तो होप ये इम्प्रूव करेगा। আমি আরো একজনের কাছে চলে আসবো। বাংলার জিডিপি এত কম বলছে, হামরো পার্টির নেতা বলছে বাংলার জিডিপিতে কোনো উন্নতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কি বলবেন? अरे इतना जो पैसा बढ़ रहा है गवर्नमेंट, वो कहाँ से आ रहा है? तो जीडीपी तो डाउन होगा ही। क्या 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 चलाता है, इतना क्या क्या चलाता है गवर्नमेंट? ऐसे क्या लक्ष्मी क्या बोल के उसमें भी पैसा देता है, उसमें भी पैसा देता है टैक्स पेयर को इतना। अभी पहले का जो बिजली का बिल था ना, वो 300 था। अभी का बिजली का बिल वही बिल 10,000 से ऊपर आ रहा है। फिर भी जीडीपी डाउन है, तो गवर्नमेंट का अपना ही दोष है, हम लोग का दोष नहीं है। वो तो ইলেকট্রিক বিল বাড়ছে কিন্তু জিডিপি বাড়ছে না। প্রশ্ন উঠছে পাহাড় থেকে, ইলেকট্রিকের বিল বাড়লেও জিডিপি বাড়ছে না কেন? রাজ্যের আয় কোথায়? রাজ্যের আয় কোথায়, এই প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে। আমি আরো একজনের কাছে যাব। আপনারা কি মনে করেন রাজ্যের আয় ঠিকঠাক?
नहीं, ठीक ठाक तो अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, जिस तरह से आम लोगों के जेब कटे जा रहे हैं, ये सब की जड़ ये भ्रष्टाचार है। हर जगह पर भ्रष्टाचार इतने ज़्यादा है कि सरकार को गंभीरता के साथ ये भ्रष्टाचार को लेना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार जहाँ पर बढ़ता है वहाँ आम जनता की जेब कटते हैं। आम जनता, दार्जिलिंग की जनता तो इतनी गरीब है कि उसको दिन की रोजी रोटी के लिए एक दिन के रोजगार उसको 200 रुपये मिलते हैं चाय बगान में, बड़ी मुश्किल से 200 रुपये मिलते हैं। आज 200 रुपये में मार्केट में जाए कुछ भी नहीं मिलता है। গোর্খাল্যান্ড পৃথক ভাগ না করে, গোর্খাল্যান্ড ভাগ না করে গোর্খাদের উন্নতি সম্ভব? गोरखा के अगर गोरखालैंड ना हुआ तो आज देखिए इसका प्रगति कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ के लोगों के जो पॉलिटिकल राइट्स वो ख़त्म होते जा रहा है, यहाँ के लोगों की जितनी भी आवाज़ है उनको दबा रहा है। इसी कारण तो यहाँ बार बार गोरखालैंड की आवाज़ आगे आता है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलजुल कर इस समस्या का समाधान करे, क्योंकि हमें विश्वास है जबकि देश में बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो राम मंदिर का मसला था वो सॉल्व हुआ। দক্ষিণবঙ্গ থেকে এসছেন, তারা বলছেন দক্ষিণবঙ্গের কোনো শাসন নেই উত্তরবঙ্গের ওপর, কারণ পুরোটা একটাই বাংলা। পাহাড় के लोग बार बार नो कमेंट्स क्यों बोलते हैं? जो अपना विषय वस्तु नहीं है उसके ऊपर वो लोग कमेंट नहीं करते ना। बात में डिस्प्यूट होता है उसका, है ना, तो उसका डिस्प्यूट होने से बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। तो जो उनका विषय है, जो उनका सब्जेक्ट है, सिर्फ उसमें वो लोग बोलते हैं। ডিসপিউটের কারণে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটে। 2017 যা দেখেছিল পাহাড়। नहीं, 2017 में जो आंदोलन हुआ ना, वो आंदोलन हुआ कितना, मोर देन 100 डेज स्ट्राइक हुआ, तो उसका प्रतिफल क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। एक पार्टी ने चिट्ठी लिख के बोला कि आंदोलन को ख़त्म कर दो, मीटिंग के लिए बुला दो। सीएम ममता बनर्जी मीटिंग बुलाई, लेकिन उस वक्त विमल गुरुंग जी को राजनाथ सिंह ने बोला था कि एक मीटिंग बुलाऊंगा, तो वो मीटिंग आज तक भी नहीं हुआ। 5 साल 6 साल हो गए, तो वो मीटिंग कहाँ पर हुआ है? রাজনাথ সিং বলেছিলেন মিটিং হবে, মিটিং এর জন্য 5 বছর অপেক্ষা করছেন দেবেন্দ্রজি। मीटिंग तो शुरू हो गया, पहले ट्राइपार्टाइट हो चुका है, अब सेकेंड ट्राइपार्टाइट के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। ফল আসবে সেখানে? हाँ, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। গোর্খাদের সমস্যাকে যদি রাজ্য সরকার সারা বাংলার সমস্যা মনে করে, গোর্খাদের সমস্যাকে বীরভূমের মানুষ যদি মনে করে তাদের সমস্যা, কলকাতার মানুষ মনে করে তাদের সমস্যা, তাহলে কি গোর্খাল্যান্ড লাগবে না? सॉरी, हिंदी में कुछ पूछ। गोरखालैंड का ये जो मुद्दा है, गोरखाओं का जो दुखिदा है, अगर गोरखाओं के दुख दर्द को कोलकाता के लोग, बीरभूम के लोग, पुरुलिया के लोग, मालदा के लोग अपना अपना दर्द समझे, तब क्या गोरखालैंड की मांग आप नहीं करेंगे? वो लोग हम लोग का जो ये हम लोग का दर्द है वो लोग समझेगा तो हम लोग अभी भी कर रहे हैं, और वो लोग करेगा तो और भी अच्छा है। लेकिन वो लोग तो अभी 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन या 7 दिन के लिए छुट्टी मनाने के लिए आते हैं। तब हम लोग का दर्द जो है ना, हम लोग 100 साल से ज़्यादा हो गया बोलता है कि वो दर्द वो लोग नहीं समझ सकते। तो वो चीज़ हम लोग फील करते, जो हम लोग इधर बैठते हैं, इधर कुछ भी नहीं है, या बेकार का है बात है कि इधर डेवलपमेंट भी नहीं है, इधर इम्प्रूवमेंट्स भी नहीं है। পর্যটকরা বারবার বলছেন তারা অটুট বাংলা চান, দীঘা থেকে দার্জিলিং এক সূত্রে বাঁধা থাক চাইছেন পর্যটকরা, বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের পর্যটকরা। অন্যদিকে গোর্খারা বলছেন তাদের শতাব্দী প্রাচীন দুঃখ কেউ বুঝবে না, বাংলার মানুষ বুঝবে না, বিশেষ করে যারা 2 দিন ঘুরতে আসেন তারা বুঝবেন না। বিজেপি কর্মী অঙ্কন দত্ত আমার সঙ্গে রয়েছেন, আমি অঙ্কনের কাছে জানতে চাই, এখানে বারবার এখানে জিএনএলএফ রয়েছে আপনাদের জোট সঙ্গী, এখানে তৃণমূল কংগ্রেস রয়েছে, হামরো পার্টি রয়েছে, সরাসরি প্রশ্ন অঙ্কন দত্তকে, বিজেপি কি পাহাড়ের ইস্যু জিয়ে রাখতে চায়? গোর্খাদের এই সমস্যা টিকিয়ে রেখে কি ভোট ব্যাংকে এগিয়ে যাচ্ছে বিজেপি? বিজেপি কোনোদিনও ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করে না। বিজেপি পাহাড়ের মানুষের যে দুঃখ দুর্দশা, দীর্ঘদিনের দুঃখ দুর্দশা রয়েছে, তার প্রতি বিজেপি সমব্যথী। এবং আপনি দেখেছেন বিজেপির বিভিন্ন যারা আমাদের জনপ্রতিনিধি রয়েছেন, সাংসদ রয়েছেন, বিধায়ক রয়েছেন, তারা বারবার পাহাড়ের বঞ্চনার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, বারবার জানিয়েছেন যে পাহাড়ের সাথে যে বঞ্চনা হচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। जब यहाँ के पीपल ही इंक्लूड नहीं है तो उसका समाधान कैसे निकल सकता है? পাহাড় পাহাড় জানতে চায় সমাধান কোন পথে। জিএনএলএফ বিজেপির জোট সঙ্গী, জোট থাকবে 2024-এ যদি গোর্খাল্যান্ডের সমাধান না হয় 2 বছরে। देखिए, हम अपने जो मुद्दे हैं उस पर अडिग रह चुके हैं, और बीजेपी के साथ जो हमारी गठबंधन है वो इश्यूज के कारण है।
ये नहीं कि हम उनके साथ हमेशा रहेंगे, ये नहीं है, लेकिन हमें उनके साथ विश्वास है, क्योंकि जो अनहोनी से लगते थे जो काम, वो काम बीजेपी कर रहे हैं। जो अपने मैनिफेस्टो में जो इस तरह के उन्होंने शामिल किया था, वो सारे काम आज हो रहा है। तो हमें भी विश्वास है कि गोरखा का भी वो दिन आएगा जिस दिन हम हंसेंगे अपने आंगन में। तो इसी विश्वास के साथ हम लोग बीजेपी के साथ है। बिहेवियर टुवर्ड्स द हिल्स, हम लोग का बात ये है, जैसे कि हम लोगों ने उनको एमपी दिया, एमएलए दिया, हमको क्या दिया? सिर्फ धोखा और आश्वासन। धोखा और आश्वासन के कारण बीजेपी का मुंह भंग हो गया है। देखिए, रिसेंटली म्यूनसिपालिटी इलेक्शन में 18 सीट हमरो पार्टी ने जीता, टीएमसी ने 2 जीता, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने 3 जीता, है ना। तो प्रजातांत्रिक मोर्चा ने 8 या 9 सीट जीता। तो वेयर इज बीजेपी इन हिल्स? वेयर इज कोalition ऑफ बीजेपी एंड टीएमसी इन हिल्स? नील, आउट ऑफ 32 नील, nobody win from GNLF और बीजेपी। तो स्लोली एंड स्टडी पहाड़ का आदमी का लोग का जो विश्वास थे बीजेपी की तरफ, वो दे आर लूजिंग। बीजेपी इज लूजिंग द फेथ from the people of hills, or the best example is the municipality election where they were nil out of 32। तो ये थप्पड़ है बीजेपी को दार्जिलिंग की जनता की तरफ से, जो सिर्फ ये बीजेपी को जो एमपी एमएलए देकर हम लोगों ने उनको धनी बनाया है, और उन लोगों ने हमको सिर्फ आश्वासन देकर कुछ भी नहीं दिया है। सो दिस इज अ बिग स्लैप टू द पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, JNLF एंड देयर कोalition। পুরো ভোটে শূন্য হাতে ফিরেছে পদ্ম শিবির, বিজেপির হাতে শূন্য, জিএনএলএফ এর হাতে শূন্য। পাহাড়ের মানুষ কি মুখ ফিরিয়েছে বিজেপি থেকে? একাধিক লোকসভা এর বিগত বিধানসভায় বিজেপির উপর পাহাড়ের মানুষ ভরসা রেখেছিল। ওনারা খুশি 2টো সিট পেয়ে ওই পৌরসভা নির্বাচনে। দেখুন, আমরা পাহাড়ের একটা স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান খুঁজতে চাই। তার জন্য জিএনএলএফ আমাদের জোটসঙ্গী এবং ভারতীয় জনতা পার্টি প্রচেষ্টা করছে, কিন্তু পাহাড়ের স্বার্থে আমরা প্রত্যেকবার দেখি যে ফান্ড অ্যালোকেশন প্রত্যেকবার বাজেটে কমছে, রাজ্য সরকারের বাজেটে। উপরন্তু উত্তরবঙ্গের যে উন্নয়ন মন্ত্রী, তিনি ভবানীপুরে বসে রয়েছেন, 6 মাসে একবার আসেন উত্তরবঙ্গে। এখনও উত্তরবঙ্গের বুকে একজন তৃণমূল বিধায়ক পেল না যাকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী করা যায়। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে উত্তরবঙ্গে 100 জনের ওপর শিশু মারা গেল। তো কোথায় ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী তথা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী? ওনারা কথা বলবেন, আমরা কাজ করতে চাই এবং কাজ করি বলে একাধিকবার এখানকার মানুষ আমাদের ওপর আস্থা রেখেছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীকে পাহাড়ে পাওয়া যায় না, ভবানীপুরে থাকেন, কি বলবেন? उत्तर बंगाल में तो बीजेपी ने जीता है ना सीट। तो व्हाट बीजेपी हैव डन फॉर द नॉर्थ बंगाल स्टेट? सबसे पहला बात ये, कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया है। नीरज जिम्बा बोला कि 200 प्लस आएगा, टीएमसी अभी डूबा हुआ जहाज है, सभी भाग के निकल जाएगा। तो 200 प्लस राजू बिष्ट जी भी बोला 200 प्लस लाएगा। 200 प्लस तो क्या 100 भी नहीं ला सका, और जो 7 था वो भी हमारे साथ आ गया। तो अभी कितना स्टेट 70 में गिर गया है। तो 70 से भी गिर के अब कितना गिरेगा बीजेपी बंगाल में, अब देखते जाइए, क्योंकि बंगाल का जनता ने बीजेपी को टोटली इग्नोर कर दिया है। রাজ্য সরকারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী, তিনি কলকাতায় থাকেন, তিনি দার্জিলিংয়ে ঢোকেন না, পাহাড়ে ঢোকেন না। উত্তরবঙ্গে খুবই বিরলভাবে দেখা যায় তাকে। অভিযোগ সত্যি? यही तो है समस्या, गोरखालैंड का समस्या यही है। कलकत्ता में बैठ के दार्जिलिंग को चलाने की कोशिश होती है। जब 1920 में हिलमैन एसोसिएशन ने एक डिमांड रखा था, एक सिंपल डिमांड, कि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दार्जिलिंग में होना चाहिए था, क्योंकि अब कलकत्ता में रह के आप दार्जिलिंग का क्या कर सकते बताओ। अब फिलहाल में एक हफ्ते पहले का नोटिस ही देखिए, दार्जिलिंग के स्टूडेंट्स के लिए छुट्टियां नहीं है, मतलब प्लेन्स के स्टूडेंट्स के लिए छुट्टियां। अब जब मौसम ही अलग है तो भाषा संस्कृति सब कुछ ही तो अलग है, और ये हम सेपरेट स्टेट ऐसे ही नहीं चिल्ला रहे। ये तो हमारा संवैधानिक हक है, संविधान बोल रहा है कि हमें अलग ही होना चाहिए। अब इतिहास पलटा के देखिए, वही तो इतिहास तो सभी को पता होगा। দার্জিলিং বলতে আমরা দার্জিলিং ম্যাল দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু দূরে পাহাড়ের কোলে যে গ্রাম দেখা যাচ্ছে, যে পাহাড়ের উপত্যকায় বিভিন্ন গ্রামগুলো, সেই গ্রামগুলোর উন্নয়ন কি এই রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সম্ভব বলে আপনারা মনে করছেন? हमारा सिद्धांत है कि हम, जैसे हमारा इलेक्शन का स्लोगन था, हमरो वार्ड हमरो हाथ, मतलब हम अपना वार्ड हम अपने हाथों से ही बनाएंगे। कोई और दूसरा बाहर से कोई आके बना नहीं सकता है। बाहर का बंदा आके यहाँ पे चलाने की कोशिश करेगा, वो कर नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसको समस्या पता ही नहीं है, वो तो बाहर से पला बड़ा है। अब यहाँ সমস্যা বোঝেন না দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট, কি বলবেন? উনি এই কথাটা বলেননি, কথাটা টুইস্ট করে দিলে। উনি বলতে চাইছেন যে রাজ্য বিস্টা যে কাজগুলো করছে, কিছুদিন আগে আপনি দেখেছেন কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে 1000 কোটির বেশি টাকা উনি বরাদ্দ এনেছেন এই দার্জিলিং এলাকার
যে সড়ক পথের সমাধানের জন্য, কিন্তু একাধিক প্রকল্পের এক্সিকিউশনের জন্য তো রাজ্য সরকারের উদ্যোগ চাই। রাজ্য সরকারের যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উনি তো পলিটিক্যাল ট্যুরিজমে আসেন এখানে, উনি তো কোনো রাজনৈতিক কোনো রকম কার্যকলাপ বার্তা নিয়ে আসেন, প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে কি উনি এখানে এসেছেন? পাহাড়ের মানুষ তারা তাদের পরিষেবা, তারা তাদের দিক থেকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেই সব পরিষেবা তারা পাবেন কবে? প্রশ্নটা উঠে যাচ্ছে, কারণ প্রশ্নটা উঠছে পাহাড় থেকে। কেন বারবার রাজ্য ভাগের কথা হবে? কেন দার্জিলিংয়ের মানুষের সমস্যা, গোর্খাদের সমস্যা সারা বাংলার সমস্যা ভাবা হবে না? কেন কলকাতার যে নেতারা আছে, বীরভূমে যারা বসে আছে, যারা মুর্শিদাবাদে বসে আছে, তারা রাজ্যের সমস্যা ভাববে না এই গোর্খাদের বিভিন্ন গ্রামে থাকা মানুষদের সমস্যাগুলো? সেই প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে। রাজ্য অটুট থাকুক, গোর্খারাও স্থায়ী সমাধান পান, তারা রাজনৈতিক সম্মান পান, তারা সম্মান পাক, শিক্ষা পাক, স্বাস্থ্য পরিষেবা পাক, এই প্রশ্ন উঠছে। ভিডিও জার্নালিস্ট রজনীকান্ত বেরার সঙ্গে শিবাশিস মৌলিক, রিপাবলিক বাংলা, দার্জিলিং।